and on we'll go. Hello viewers, how are you all? Yes, today we are going to start with the new topic of class 11th economics, that is called solutions of central problem of the economy. Yes, आपने इससे पहले वाली जो वीडियो देखी उसमें था हमारा टॉपिक कॉल्ड प्रॉब्लम्स ऑफ द सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी, राइट। अब हम लोग क्या पढ़ने जा रहे हैं, आज हम लोग पढ़ेंगे सॉल्यूशंस हमारी सेंट्रल प्रॉब्लम ऑफ द इकोनॉमी के। इन दैट प्रीवियस वीडियो, अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो पहले उसको वॉच करके आओ, क्योंकि ये तभी समझ में आएगी व्हेन यू आर सीइंग दैट प्रीवियस वन ऑल्सो। So this is very important chapter for all the courses, like whether you are in 11th class for microeconomics or you are doing for BBA and BCom. So it is very important for you all. Even that in the CA and CS it has come. This question is compulsorily coming in the exams also. So this is called, this topic is very important. Then you have to listen it very quietly, right, and very attentively, and watch the video full, so that I give you one more surprise for you at the last of this video. So please see the video. Okay, so let's start our today's topic, that is called central problem of the economy. Students, as you knows that कि in our economy we have a scarce resources, right? So here we have three solutions, means जो type of economies हैं, it is also called the types of economies which different countries followed. So we have three types of economies in the world. How many economies? Three types of economies in the world. First is capitalist economy, second is socialist economy, and third is mixed economy. What are those beta? First is capitalist economy, second is socialist economy, and third is mixed economy. Okay, so let us start from our topic, that is called capitalistic economy. अब एक capitalist economy क्या होता है? What is that capitalist economy? We say that it is that economy in which individual is the owner of the factor of production, जहाँ पे इंडिविजुअल बिजनेस जो प्राइवेट बिजनेसेस हैं वही होंगे फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। सेकेंड, अब बिजनेसेस जो प्राइवेट बिजनेसेस कर रहे हैं, प्राइवेट बिजनेसेस चला रहे हैं, तो दैट इज वी कॉल्ड इट एज कि भाई जो इनका जो मेन मोटिव होगा वो क्या होगा? प्रॉफिट। तो वी आर इन द सेकेंड पॉइंट वी आर राइटिंग एज प्रॉफिट इज द मेन मोटिव। देन थर्ड, क्योंकि प्राइवेट बिजनेसेस पूरी इकोनॉमी को चला रहे हैं तो गवर्नमेंट का भी क्या रोल होगा? तो गवर्नमेंट का बहुत छोटा सा रोल है, दैट इज कॉल्ड ओनली फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। तो वी आर राइटिंग एज थर्ड पॉइंट क्या है? लिटिल रोल ऑफ गवर्नमेंट, ओनली फॉर एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क। Next, what to produce, how to produce, and whom to produce is decided by business, private businesses और individuals. ये कौन डिसाइड करता है? Individuals डिसाइड करते हैं, private businesses डिसाइड करते हैं, right? For example, कौन कौन सी कंट्रीज हैं सर ऐसी जो कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो कर रही हैं? We are saying that economy is known as like Canada, Singapore, Hong Kong, यूनाइटेड किंगडम, यूनाइटेड स्टेट्स। ये सब क्या है? ये सब किसको फॉलो कर रहे हैं? ये सब फॉलो कर रहे हैं हमारे कैपिटलिस्टिक इकोनॉमी को। आई होप कि कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्लियर हो गया होगा। क्या है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी? क्योंकि कैप लेते हैं फटाफट से। इंडिविजुअल इज द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सेकेंड प्रॉफिट इज द मेन मोटिव, थर्ड व्हाट? थर्ड, लिटिल रोल ऑफ गवर्नमेंट ओनली फॉर द एडमिनिस्ट्रेटिव वर्क, एंड नेक्स्ट what to produce, how to produce, and for whom to produce is decided by market forces. कौन डिसाइड करता है? मार्केट फोर्सेस डिसाइड करते हैं, राइट ना। एंड लास्ट, फॉर एग्जाम्पल, when means sir what name please give you would you please give me the name which countries follow these type of economy? So I am telling you beta Singapore, Canada, United Kingdom, United States, हांगकॉन्ग, ये सब क्या है? इसको फॉलो करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, ये सब किसको फॉलो कर रहे हैं? कैपिटलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स मूव ऑन टुवर्ड्स द नेक्स्ट वन, दैट इज कॉल्ड सोशलिस्टिक इकोनॉमी। एंड व्हाट इज दैट सोशलिस्टिक इकोनॉमी? एज द नेम सजेस्ट, रिलेटेड टू सोसाइटी, मीन्स हेयर गवर्नमेंट इज द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। यहाँ पे कौन प्रोडक्शन का ओनर होगा? गवर्नमेंट इज द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। गवर्नमेंट क्या है? गवर्नमेंट है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन का ओनर। मीन्स वहाँ पर इंडिविजुअल देखता था, प्राइवेट फर्म्स देखते थे, यहाँ पर गवर्नमेंट देखता है। ओके, सेकेंड पॉइंट है क्योंकि गवर्नमेंट देख रहा है तो उसका मेन मोटिव क्या होता है? वेलफेयर।
तो सेकंड पॉइंट हो गया हमारा वेलफेयर इज द मेन मोटिव. व्हाट इज दैट? वेलफेयर इज द मेन मोटिव. क्योंकि सब चीज़ बिजनेस गवर्नमेंट संभाल रही है तो गवर्नमेंट का रोल कैसा हो गया? हैवी रोल हो गया. तो वी आर राइटिंग एज हैवी रोल ऑफ गवर्नमेंट. व्हाट वी आर राइटिंग? heavy role of government, right? After that we have the next point that is called what to produce, how to produce and for whom to produce is decided by. कौन डिसाइड करेगा? ऑब्वियस है गवर्नमेंट डिसाइड करेगी बिकॉज गवर्नमेंट इज द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. तो किसने डिसाइड किया? गवर्नमेंट डिसाइड किया. आफ्टर दैट द लास्ट पॉइंट इज कॉल्ड द एग्जाम्पल्स. लाइक फॉर एग्जाम्पल वी आर राइटिंग चाइना, क्यूबा. These are the examples who follows socialist economy. जो किसको फॉलो कर रहे हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो कर रहे हैं. एक बार फटाफट से रिकैप्चुलेट करते हैं सोशलिस्ट इकोनॉमी क्या होता है. तो आई से दैट सोशलिस्ट इकोनॉमी इज दैट इकोनॉमी in which government is the owner of the factor of production, welfare is the main motive, heavy role of government, what to produce, how to produce and for whom to produce is decided by market forces. And the last is which country follow these type of system. So we are saying that China, Cuba etc etc ये सब क्या करते हैं? सोशलिस्ट इकोनॉमी को फॉलो करते हैं. नाउ वी हैव द नेक्स्ट वन कॉल्ड मिक्स्ड इकोनॉमी. नाम सुन के बड़ा अच्छा लग रहा है ना, मिक्स्ड इकोनॉमी. दैट इज कॉल्ड कि हाँ भाई गर्व होता है. दैट इज आर इंडियाज इकोनॉमी इज कॉल्ड द मिक्स्ड इकोनॉमी, है ना भाई. हमारे भारत की इकोनॉमी मिक्स्ड इकोनॉमी है. यस. तो वी आर राइटिंग एज कि भाई मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है. हम कहते हैं कि भाई नाम बता रहे हैं एज नेम सजेस्ट कि मिक्स्ड इकोनॉमी मीन्स द कॉम्बिनेशन ऑफ कैपिटलिस्टिक एंड सोशलिस्ट इकोनॉमी इज नोन एज मिक्स्ड इकोनॉमी, राइट. सो मिक्स्ड इकोनॉमी क्या है? वी से दैट it is that type of system of the economy in which individual and government both are the factor or owner of the factor of production. I repeat, individual and government both are the owner of factor of production. Second, profit as well as welfare is the main motive. भाई प्रॉफिट भी मेन मोटिव होगा और वेलफेयर भी. क्यों? क्योंकि अगर प्राइवेट फर्म चलाएंगे तो प्रॉफिट मेन मोटिव होगा, गवर्नमेंट चलाएगा तो वेलफेयर मेन मोटिव होगा. तो क्या होगा? कॉम्बिनेशन प्रॉफिट एज वेल एज वेलफेयर इज अ मेन मोटिव. थर्ड, बोथ प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन द इकोनॉमी. गवर्नमेंट भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है तो एज वेल एज हमारी जो प्राइवेट फर्म्स हैं वो भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल यू आर लिसनिंग द टाटा एंड रिलायंस. दीज आर द प्रोवाइडिंग वेरियस टाइप ऑफ जॉब अपॉर्चुनिटीज टू द पब्लिक एंड प्रोवाइडिंग न्यू टेक्नोलॉजीज इन इंट्रोड्यूसिंग न्यू टेक्नोलॉजीज फॉर आवर कंट्री. दिस इज वॉट दे आर डूइंग वेरी they are doing lot of things for our economy. वो क्या करते हैं? हमारे लिए बहुत कुछ कर रहे हैं. दैट इज़ कॉल्ड कि वो हैवी रोल प्ले करते हैं दोनों ही दोनों. कौन? प्राइवेट एज वेल एज गवर्नमेंट. नेक्स्ट उसके बाद हमारा क्या आता है कि भाई फॉर हुम, व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर हुम टू प्रोड्यूस इट डिसाइडेड बाय. कौन डिसाइड करेगा? इट इज़ डिसाइडेड बाय मार्केट फोर्सेस. कौन डिसाइड करेगा? मार्केट फोर्सेस डिसाइड करेंगे. क्यों मार्केट फोर्सेस क्यों डिसाइड करेंगे? इट इज़ ओनली बिकॉज कि यहाँ पर डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट आ जाता है. किसका आ जाता है? डिमांड और सप्लाई का कॉन्सेप्ट आता है कि भाई यहाँ पर क्या बनाना है, क्या कैसे बनाना है, किसके लिए बनाना है. इट टोटली डिपेंड्स ऑन डिमांड कि भाई किस प्रोडक्ट की कितनी डिमांड आ रही है, उसके हिसाब से हम क्या करेंगे? प्रोडक्शन करेंगे, राइट. एंड द लास्ट इज आर एग्जाम्पल कॉल्ड इंडिया एंड पाकिस्तान. अभी हम इसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं. उससे पहले मैं एक साइड में होकर आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इसको नोट कर सकते हैं अपनी कॉपीज़ में. तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए फटाफट से. ओके, आई होप कि आप सब लोगों ने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा और इसको नोट कर लीजिएगा. बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हर बार आता है, कभी पीछा नहीं छोड़ेगा. अगर आप 11th में हो तो 11th में पढ़ोगे, फिर उसके बाद आगे ग्रेजुएशन के कोर्सेज करोगे तब भी, और CS करने वाले हो तब भी. तो ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट है और एवरी टाइम एग्जाम में आता ही आता है, राइट. अब एक फटाफट से कोई रिकैप लेते हैं. क्या कैपिटलिस्ट इकोनॉमी क्या है? इट इज़ दैट इकोनॉमी, इट इज़ दैट टाइप ऑफ इकोनॉमी इन विच इंडिविजुअल इज द ओनर ऑफ द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन. सेकंड, प्रॉफिट इज द मेन मोटिव. थर्ड, little role of government. Fourth, what to produce, how to produce and whom to produce is decided by individuals. कौन डिसाइड करता है? इंडिविजुअल. प्राइवेट बिजनेसेस डिसाइड करते हैं. And the last is what type of countries they follow these type of system. We are calling as Hong Kong, Canada, even that United States, United Kingdom, and that is we call it Singapore. So these are Australia. So these are the examples of capitalist economy. Then we are coming with the socialist economy. It is that type of economy in which government is the owner of the factor of production. जहाँ पे government क्या होगा? Owner होगा factor of production का. And second thing is
where welfare is the main motive, because government doing all the activities in the economy, so the main motive is welfare. So welfare is the main motive. Then third one, what is that third one? Third one is called ki who plays an important role. We are saying that government plays an important role in the economy, means government play a very important role in the economy. Next इसके बाद आता है what to produce, how to produce and for whom to produce is decided by whom? It is decided by government only. वो कौन decide करेगा? Government decide करेगा. For example, we are taking about कि which name the country that follow the socialist economy, socialism, that we call it as, I am telling you that Cuba and China. So these are the countries which follow the socialist economy, and etc. Even that we have the third one also, that is called mixed economy, and in mixed economy we are saying that it is a combination of capitalistic and socialist economy. What is that? It is called the combination of capitalistic as well as socialist economy is called mixed economy. We making the formula capitalist economy plus socialist economy equals to mixed economy, right? So we are the combination of capitalistic and socialist economy becomes mixed economy that our India follows, right? For example, अब इसके बारे में हम थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं that what is that, क्या है ये? तो we are saying that in very short way we are learning about कि mixed economy is that economy in which individual and government both are the owner of the factor of production. Second, profit as well as welfare is the main motive. Third, both plays heavy role in the economy, दोनों ही heavy role play करते हैं economy में. Fourth, what to produce, how to produce and for whom to produce decided by market forces. कौन decide करता है? Market forces decide करते हैं. And even that after that what are the examples that follow that mixed economy? We are saying that India and China, they are following the mixed economy. Okay students, I hope you all getting this topic. Thank you for today. Have a nice day.